The Lord slays the king of the demons. Chapter title, The Lord slays the king of the demons. अभी हम chapter 12 पढ़ रहे हैं. Chapter 8, title. Chapter 8, title Okay, is title, okay. The Lord slays the king of the demons. Lord, भगवान ने राक्षसों को मारा. Translation this up. Do you have a book in Hindi so he can just read it? That would be helpful. You have on the phone? That would be a little easier. Why don't you just read it? Canto 7, chapter 8, verse 9. Yeah, you just read in Hindi. प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें. आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव ना लाएं. आप अपने मन को सबों के प्रति संभाव बनाएं. इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है. जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, तभी वो भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है. Read the purport by Srila Prabhupada. जब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर दिया जाता, तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है. जैसे कि अर्जुन भगवद गीता में कहता है, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवर्धनम तस्याम विग्रहम मन्ये वायुर्व सुदुष्करम. हे कृष्ण, मन चंचल, उदंड, धृति तथा अत्यंत प्रबल होता है और मेरी समझ से उसको दमित कर पाना वायु को नियंत्रित करने की उपेक्षा अधिक कठिन है. मन को नियंत्रित करने की प्रामाणिक विधि है मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर देना. हम अपने मन के आदेशानुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं, किंतु वास्तव में न तो मित्र होते हैं न शत्रु. पंडिता समादर्शिना समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं वदते तना. इसे समझाना कि भक्ति के राज्य में प्रवेश कर देने की पहली शर्त है. That was the purport is finished. Okay. Do you want to read the translation to 10? Just the translation. Yeah. प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं, जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाते हैं. ये मूढ़ यह सोचकर गर्वित होते हैं, मनो तो रतो दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत दिया है. किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजयी होता है और सारे जीवों पर संभाव रखता है, तो उसके शत्रु नहीं होते. शत्रु की कल्पना मूर्खता वश की जाती है. No, that's okay. Om Gyanatimurandasya Gyana Shalakaya Chakshur Om Militamyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shah. Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padam Sahagana Vitam Shah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshri Rishabhanu Sutta Devi Pranamami Haripriye. Vanchakapatubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dear Srila Prabhupada, I was born in the darkness of ignorance, and you are kindly, daily opening my eyes with the torchlight of your knowledge. I offer my respectful obeisances to you again and again. Om Vishnu Padaya Krishna Stai Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gopani Vicharani Nirvishesha Nivadi Vishtajtishna. Please, dear Lord Krishna, we are gathered here to learn and grow, to have deeper understanding about what it means to serve you. हे भगवान, हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं कुछ सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। कृपा करके हम आपकी सेवा कर पाएं और कुछ सीख पाएं। Please always shine your light on us to help us to see the truth. कृपा करके आप हम पर प्रकाश डालें ताकि हम सच को सीख पाएं। And please always protect us from Maya. और हमें हमेशा कृपा करके माया से बचाए रखें। Krishna. So, I'll talk about Prabhupada first. One time a devotee saw Prabhupada praying. And one time a devotee saw Prabhupada praying. भक्त कब देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब प्रार्थना हाँ जी एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद को प्रार्थना करते हुए देखा। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हुए देखा। And he asked Prabhupada, what are you praying? और उसने पूछा कि आप क्या प्रे कर रहे हैं? Prabhupada said, I'm praying to Krishna to please protect me from Maya. प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे वो माया से बचाएं। And he said, but Prabhupada, you're a pure devotee. भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी आप पहले से ही शुद्ध भक्त हैं। And then Prabhupada said, yes, that is the difference between you and I. तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, यही डिफरेंस है तुम में और मेरे बीच में। I have a healthy fear of Maya. मुझे माया से बहुत डर लगता है। And you don't. और आपको माया से नहीं लगता। And as we can see, in this world, well, let me just continue to glorify Prabhupada and then we'll go on to the story. So, my experience with Prabhupada was very distant. मेरा जो अनुभव है प्रभुपाद जी के साथ वो बहुत ही दूर से है, डिस्टेंस तरीके से है। By the time I came to the movement in 1974, Prabhupada had so many disciples. जब मैं 1974 के बीच में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई तो ऑलरेडी प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे। And even though I did go to a Rath Yatra where Prabhupada was present, और मैं रथ यात्रा में भी जाया करती थी जहाँ पर प्रभुपाद जी स्वयं होते थे। I can only remember being way in the back of the temple room. मुझे इतना ही याद है कि मैं टेम्पल रूम से दूर खड़ी हुई थी। Not able to really see Prabhupada. और मैं प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे से देख नहीं पा रही थी। Far away, like he's over there, or even further than that. मतलब इतना दूर कि जितना कि वो मतलब थोड़ा देखने में दिक्कत हो। On that particular occasion, go ahead, on that particular occasion, at that time. और उसी वो स्पेसिफिक ओकेजन पर, उसी समय पर, the women were making garlands for the Rath cart. हम सभी जो औरतें हैं वो भगवान रथ यात्रा के लिए गार्लैंड्स फूल की मालाएं बना रही थी। And the temple was basically a big house. We didn't really have temple buildings. We
just got houses, so it was a big house. और वो जो मंदिर था वो वास्तव में एक घर था, एक बहुत ही बड़ा घर की तरह था। And it had a wide hallway. और उसके बीच में एक बहुत बड़ा हॉल था जो कि काफी चौड़ा था। Half the hallway went back to the kitchen, और आधे हॉल में से जो रास्ता है वो किचन की तरफ निकलता था। and half of it was on the right, were the steps to go to the second floor. और आधे हॉल में सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां थी। Now, we knew that Prabhupada was staying on the second floor. और हमें पता था कि प्रभुपाद जी सेकंड फ्लोर पे रुके हुए हैं। So a few of us ladies thought, there's this corner by the front door. Maybe we'll sit there and make the garlands there, just in case. और हम कुछ लेडीज वहीं पे ही गार्लैंड्स बना रहे थे उसी सीढ़ियों के पास में कॉर्नर पर। Just in case Prabhupada और ऐसा comes सोच down. रहे थे जस्ट इन केस शायद प्रभुपाद जी आ जाएं नीचे। And in fact, Prabhupada came down the steps. और बल्कि प्रभुपाद आए भी। And he saw us and he paused. और उन्होंने हमें देखा और एकदम से वो रुक गए। And he said, Haribo. और उन्होंने बोला हरि बोल। Prabhupada was very personal. प्रभुपाद जी एक बहुत ही पर्सनल व्यक्ति थे, वो बहुत पर्सनल तरीके से डील करते थे सबके साथ। Prabhupada was not arrogant. प्रभुपाद जी में कोई खड़ूसपन नहीं था। He was very kind and compassionate. और वो अत्यंत दयालु थे। He just paused, but he acknowledged that we were there. और वो जैसे उन्होंने हमें देखा वो रुक गए। So that was my one exchange with Prabhupada. तो मेरा ये प्रभुपाद जी के साथ एक ये एक्सपीरियंस हुआ। And the other one was a year later. और मेरा जो दूसरा एक्सपीरियंस वो ये है। In New Vrindavan, I got a cookie from his hand. I mean, we were in a long line. बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी तो मेरे को प्रभुपाद जी के हाथ से एक बिस्किट मिला। So it was kind of like a 2-second thing. और वो बहुत 2 सेकंड था कि एकदम से दिया और हाथ हट गया। And so sometimes it may seem that I didn't have a lot of exchange with Srila Prabhupada externally. एक्सटर्नल तौर पे और इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा मेरा कोई अदर एक्सचेंज नहीं हुआ प्रभुपाद जी के साथ। In reality, I met Srila Prabhupada in 1971. और वास्तव में तो मैं प्रभुपाद जी से 1971 में मिली थी। When a college friend of mine showed me a book. जब मेरे एक कॉलेज के दोस्त ने मुझे प्रभुपाद जी की किताब दी। And the picture in the book of the universal form with many heads and arms and legs completely. और उस किताब में एक मैंने फोटो देखी जिसमें बहुत सारे किसी एक व्यक्ति के बहुत सारे हाथ थे। Caught my attention. और मैंने एकदम से देख के मुझे आश्चर्य हुआ। I looked at some of the verses and read a few verses. और मैंने कुछ श्लोक पढ़े उसमें से। And immediately I wanted to have a copy of that book. और इमीडिएटली मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे उस किताब की एक कॉपी चाहिए। So the next weekend I went to the store where he had gotten the book. और मैं अगले ही वीकेंड पे एक स्टोर गई जहां पर मैंने वो किताब को खरीदा। I bought 5 copies. It was Prabhupada's Macmillan version of the Bhagavad Gita. और जो वो प्रभुपाद जी द्वारा ओरिजिनल वर्जन था लिखा हुआ भगवद गीता का, उस टाइम पे मैंने 5 कॉपीज खरीदी उसकी। That's really when I met Srila Prabhupada. That's really when I met Srila Prabhupada. और असल में ये मेरी असली मुलाकात थी प्रभुपाद जी के साथ जब मैंने उन किताबों को खरीदा। And his words and his purports struck my heart. और उनके शब्दों ने और उनके तात्पर्यों ने मेरे हृदय को झंझोर कर रख दिया। He repeated the phrase, the Supreme Personality of Godhead. उन्होंने बार-बार इस शब्द को दोहराया उस पूरी किताब में कि सुप्रीम पर्सनालिटी कौन है भगवान की। And that really intrigued me. God has a personality. और मेरे को एकदम से लगा कि भगवान कोई एक व्यक्ति हैं। God has a personality. Wow. और भगवान की भी कोई पर्सनालिटी है। मैं एकदम से सोचकर बहुत ही एक्साइटेड थी।
So this is our process. This is the process that Prabhupada brought to us. यही हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोसेस है जो प्रभुपाद जी ने हमें गिफ्ट दिया है. A process that he emulated. यही प्रोसेस है जो उन्होंने इजाद किया है. The process of personalism. जो ये व्यक्तिवाद का जो ये प्रोसेस है कि हम भगवान को एक पर्सन की तरह जान सकें. We won't be able to have love of Godhead unless we are personal. आप भगवान को तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक कि भगवान कोई व्यक्ति ना हो. So we can have a personal exchange with Srila Prabhupada through his writings. हम भी प्रभुपाद जी के साथ व्यक्तिगत एक्सचेंजेस कर सकते हैं उनकी किताबों के द्वारा. Reading the stories of his life. जो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन की कहानियां लिखी हैं हम उसको पढ़कर. Reading the memories of those who had personal association with him. और जिनका प्रभुपाद जी के साथ व्यक्तिगत एसोसिएशन हुआ है और उनके द्वारा लिखी हुई उनके एक्सपीरियंसेस को भी पढ़ सकते हैं. And we can also have Srila Prabhupada's association by practicing to be personal. और हम प्रभुपाद जी द्वारा इन सब दी गई चीजों को खुद भी पर्सनल बनकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. As we practice to deepen our Krishna consciousness. और हमें प्रैक्टिस हम करें कि हम अपनी कृष्ण भावनामृत की इन फीलिंग्स को और ज्यादा डीप कर पाएं. We deepen our relationship with Guru, Prabhupada and Krishna. हमें गुरु प्रभुपाद और कृष्ण के साथ अपने रिलेशनशिप को डीप करना चाहिए. So now I'm going to segue into this verse. अब मैं इस वर्स के अंदर पढ़ रही हूँ. So here we have Hiranyakashipu, a demon, and his son Prahlad, a devotee. इस वर्ष में हमारे पास हिरण्यकशिपु एक राक्षस हैं और उनके बेटे प्रहलाद महाराज हैं. So let's think about what was the difference between the two of them. हम ये एनालाइज करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था. What were the qualities of Hiranyakashipu? हिरण्यकशिपु में क्या क्या क्वालिटीज थी. Tell me. He wants to be the controller. Everyone was fearful of him. से डरते थे. Dedicated for austerity. He was motivated. Yes. Motivated. His austerity had a big motivation. माता जी ने कहा कि उनकी क्वालिटी के रूप में कि वो अपने आप को डेडिकेट करते थे तपस्या के लिए. तो माता जी ने बदले में जवाब दिया कि उनकी वो तपस्या के पीछे कोई मकसद था कुछ पाने का. His motivation was not pure devotional service. और उनकी जो वो तपस्या के पीछे जो उसका मकसद था वो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं था. His motivation was to be the controller. उनका जो मोटिवेशन था वो कंट्रोलर एक भोक्ता बनने का था. नियंत्रक बनने का प्रयोजन था तपस्या के पीछे. Why did Hiranyakashipu have such a need to be the controller? क्यों हिरण्यकशिपु में ऐसी भावना थी कि वो एक बहुत बड़ा कंट्रोलर बनना चाहता है. Anybody have any ideas? किसी को इस बात का आइडिया है अपना हाथ खड़ा करे. He wanted to compete with the Lord. He wanted to what? Compete with the Lord. He wanted to compete with the Lord. प्रभु जी ने जवाब दिया कि वो भगवान के साथ कंपटीशन करना चाहता था. Okay, but I think there was something else even stronger than that. Envy. You can say envy, but I think there was something even stronger than that. प्रभु जी ने जवाब दिया कि भगवान के साथ एनवीनेस दुश्मनी थी. तो माता जी बोल रही हैं द्वेष. माता जी कह रही नहीं इससे भी ज्यादा कोई और स्ट्रांग बात है. तो माता जी उत्तर पूछ रही हैं. Any ladies have any ideas? वो बताता था कि मैं ही भगवान बनना चले हरनाकश तले हरनाकश ये सब जगह मैं हूँ. He said कि मैं ही हूँ क्योंकि मैं मर नहीं सकता तो मैं ही भगवान. So माता जी is saying that he believes that he is himself a god. He can't be killed by anybody. He
wanted that, but what was the motivation for that, वो that ऐसा चाहता desire? था कि उसे बट उसके पीछे स्टिल कोई मकसद था बहुत बड़ा. Something hidden, there's something hidden there. वो अपनी पूजा करवाना चाहता था. Because control mentality comes from the Krishna. Krishna is the supreme control. Yes, but it came from something else. Should I tell you all? One more guess. Sense gratification, enjoyment. Okay, I'll have to give you the answer. माता जी अब उत्तर देने जा रही हैं. वो अपनी पूजा करवाना चाहता था and he was a competitor of God. माता जी saying that he want him to be worshipped and he was a competitor of Krishna. Okay, all those things are true, वो सभी चीजें भी ठीक हैं, and पर his motivation was fear. उसका जो मकसद, उसका मोटिवेशन था, जो उसके अंदर से निकलती थी, वो एक डर था. उसे एक बहुत डर था अंदर से. He was afraid of death. वो मृत्यु का दोस्त था. He was very, डेथ फ्रेंड ऑफ, अच्छा डेथ का उसको मृत्यु से डर था. मैं था मृत्यु से. he was afraid of death. He was afraid. He was very, very, very insecure. वो बहुत डरा हुआ था, बहुत इनसिक्योर रहता था हर वक्त. He was insecure. वो इनसिक्योर व्यक्ति था. And so when we're insecure, the compensation for being insecure is to try to control everything. और जब कोई व्यक्ति इनसिक्योर होता है तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए वो ऐसा रिएक्ट करता है कि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है. That gives us an illusory sense of control and power. और यही एक इल्यूजनरी सेंस ऑफ कंट्रोल और पावर को कमांड करने जैसी एक बात है. Gives us an illusory sense of security. और ऐसा करना उसको एक इल्यूजनरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती थी. Now, Prahlad, on the other hand, और Jai Jagannath Baladev Subhadra, Jai 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 Hare Krishna. और वहीं दूसरी और प्रहलाद, Prahlad, on the other hand, he put his security elsewhere. Where was Prahlad's security? Where was Prahlad's security? हाँ, और प्रहलाद जी को ऐसा कुछ सिक्योरिटी के बतौर ऐसा कुछ उनको नहीं था. उनकी सिक्योरिटी वो किसी और के थ्रू फील करते थे. Ladies, where was Prahlad's security? प्रहलाद की सुरक्षा क्या है, माता जी ये पूछ रही है. अंदर में प्रभु की In the Lord. प्रभु की शरणागत थी, इसलिए उनको विश्वास था कि प्रभु की रक्षा. Vishwas. माता जी saying that he believes in the security of surrenderness of the Krishna. Yeah, Krishna was his security. Yeah, तो कृष्ण ही उसकी सिक्योरिटी थे. Now, let's bring this into our lives. चलिए अब हम इस पूरी कहानी को अपनी जिंदगी में लाकर बात करते हैं. Here we are, Jiva Tattva. हम लोग जीव तत्व हैं. We don't really know our real identity. We don't know who we are. हम लोगों को सच में नहीं पता कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है. So what is our illusory security? और अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे लिए हमारी वो सो कॉल्ड इल्यूजनरी सिक्योरिटी क्या है. हमें अपना काम करना चाहिए. हमारा काम है प्रभु की भक्ति करना. प्रभु अपना काम करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे. माता जी saying that we should keep on doing our own duties and Lord will always protect us. We should just only believe this. So in this world, because we don't know who we are, thank you. In this world, because we don't know who we are, इस दुनिया में हमें ये नहीं पता कि हम लोग कौन हैं. Krishna has given us an operating mechanism, a temporary identity. तो इसकी वजह से कृष्ण ने हमारे को एक ये टेम्परेरी आइडेंटिटी दी है ताकि हम इस दुनिया के अंदर हर चीजों के साथ अपने आप को रिलेट कर पाए, ऑपरेट कर पाए. What is that temporary identity? और वो टेम्परेरी आइडेंटिटी क्या है, माता जी सवाल पूछ रही है. Body, but more than that,
the subtle body, What? subtle body. या सर, तो प्रभु जी ने जैसे ही जवाब दिया कि बॉडी है वो टेम्परेरी आइडेंटिटी, तो माता जी ने बताया कि उसके भी अलावा सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर हमारा। हम सब आत्माएं हैं, हमेशा अधर्म रहने वाली, और ये शरीर हम धारण करते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में। आत्मा हमेशा रहती है, जो हम कर्म करेंगे वो हमारे साथ चलेंगे, अच्छे हो या बुरे, उसी से हमारे को अगला जन्म, पिछला जन्म सब मिलेगा। हमें इसलिए अपने सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। प्रभु देखते रहेंगे, वो खुद करेंगे जो उन्होंने करना है, हमें सिर्फ अपने कर्म करने चाहिए। थैंक यू। Okay. Yeah, she told that again, we are a soul, and we are that Krishna said we are all immortal, and we should keep on doing good deeds. We are a soul. However, most of us don't really operate from that platform. We operate generally from the platform of our software programming, which is our false ego. जो हम जानते तो हैं कि हम आत्मा हैं, पर हम कभी भी अपनी आत्मा के धरातल पर आकर किसी से बिहेव नहीं करते। हम हमेशा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग द्वारा चलते हैं, जिसको कहा जा सकता है वो फॉल्स ईगो है, वो अहंकार है, जिसके द्वारा हम लोग चल रहे हैं। It's not a bad thing to have a false ego. It really helps us to function in this world, because if we didn't, we would be pretty much like a vegetable. We need some kind of operating system. ये ऐसा नहीं है कि ये अहंकार तो एक बुरी चीज है, इसकी भी इस दुनिया में, इस दुनिया के चाल चलन में चलने के लिए जरूरत है। अगर ये ना हो तो हम एक सब्जी की तरह होंगे कि जिसको कोई भी कहीं भी फेंक सकता है। The problem is that we identify with this false ego, and we think this ego is our personality. We think this ego is the way we are. This ego is who we are. पर ये प्रॉब्लम है कि हम इसी ईगो को ये मानते हैं कि यही हम हैं, यही सब कुछ है, यही हमारी रियल आइडेंटिटी है। And if anyone challenges us or our way of thinking, even our perceptions or our opinions or our ideas, if anybody challenges that, और अगर कोई हमारी अवधारणाओं को, हमारी ओपिनियन को अगर कोई चैलेंज करता है तो we may feel offended, तो हमें बहुत ऑफेंडेड फील होता है, like you're trying to hurt us. जैसे कि वो व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमें ऐसा महसूस होता है। The greatest fear in this material world for a jiva tattva इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस संसार में जीव तत्व के लिए जो सबसे बड़ा डर है वो is that our ego will be killed. वो ये है कि हमारी कोई ईगो को किल ना कर दे, हमारे अहंकार को कोई किल ना कर दे। And this keeps us in material consciousness. और यही बात हम लोगों को इस मटेरियल कॉन्शियसनेस में, इस सांसारिक सोच में रखे रखती है। If you look at Hiranyakashipu, he was a bit arrogant and egotistical. Just a bit, just a little bit. जैसे कि आप हिरण्यकशिपु को देखते हैं कि वो बहुत ही एक खड़ूस प्रकार का और एक बहुत ही इगोइस्टिक व्यक्ति था। Prahlad, on the other hand, वहीं दूसरी ओर प्रहलाद महाराज was very simple. बहुत ही सादे व्यक्ति थे। He wasn't disturbed by his father. वो अपने फादर से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते थे। He rather was fixed in his loving devotion to Krishna. और वो उसी भगवान की प्रेममयी भक्ति के अंदर स्थिर थे, इसके बावजूद भी। Now, the fact that he wasn't disturbed by his father was very disturbing to his father. और ये बात की वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते अपने फादर द्वारा, तो उसके जो फादर थे वो खुद डिस्टर्ब हो जाते थे। He had control of the whole universe. The demigods were shaking.
उनके फादर के पास पूरी दुनिया का एक तरीके से कंट्रोल था, सभी देवी देवताएं उनसे कांपते थे। And the only thing that really made Prahlad his enemy was that he believed in the Supreme Personality of Godhead, who was Hiranyakashipu's enemy. और सिर्फ एक चीज की वो प्रहलाद महाराज सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास रखते थे, यही चीज उनको अपने फादर का दुश्मन बनाती थी, अपने पिता का। The mentality of enemy pervaded Hiranyakashipu's mind. और यही भावनाएं, ये दुश्मनी की भावनाएं उनके पूरे दिमाग में फैली रहती थी। If you do not submit to me, you are my enemy. अगर तुम मुझे समर्पण नहीं करोगे, मुझे मानोगे नहीं, तो तुम मेरे दुश्मन हो। If you do not agree with me, you are my enemy. और अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम मेरे दुश्मन हो। Prahlad just didn't agree with his father. I don't really want to get involved in politics, my dear father. I really want to focus on simply remembering the Lord. तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रहलाद महाराज केवल यही बात बोलते थे अपने पिता को कि मैं भगवान की प्रेममयी भक्ति में और उनको स्मरण करने में बिताना चाहता हूँ, मैं इन सब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। This infuriated Hiranyakashipu. और ये उनको बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आता था जब वो ऐसी बात सुनते थे प्रहलाद महाराज। Just one little 5-year-old boy that he couldn't control, who happened to be his son, infuriated him. और ये बात महसूस करता था हिरण्यकशिपु कि मैं अपने 5 साल के बेटे को ही कंट्रोल नहीं कर सकता। इस बात को वो जैसे ही महसूस करते थे तो वो बहुत गुस्से में बौखला जाता था। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? I am going to kill you. मैं तुम्हें मार डालूंगा। Now, was Prahlad afraid? क्या अब आप देखिए कि प्रहलाद महाराज खुद भी बौखलाते थे? Was Prahlad afraid? क्या प्रहलाद महाराज डरते थे? No, he wasn't. He wasn't afraid. He just had faith. Okay, Krishna, whatever you want to happen is going to happen. I am your devotee, and that's it. Simple. और वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे, बस वो एक ही विश्वास रखते थे कि हे कृष्ण, मैं आपका भक्त हूँ, जैसा आप मुझे बचाएंगे मैं खुश हूँ। So Hiranyakashipu saw this little 5-year-old boy as his enemy that he had to destroy. Hiranyakashipu saw this 5-year-old boy as his enemy that he had to destroy. और हिरण्यकशिपु इस 5 साल के बालक को अपने एक एनिमी के रूप में देखते थे, जिसको वो खत्म कर देना चाहते हैं। And Prahlad, despite the fact that his father made multiple attempts to kill him, did not see his father as an enemy. और दूसरी ही और प्रहलाद महाराज जिनको बहुत बार मारने की कोशिश की गई, वो स्टिल अपने फादर को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते। He felt compassion for his father. और वो अभी भी अपने पिता के लिए दया का भाव रखते हैं। My dear father, हे मेरे प्यारे पिता, please give up your demoniac mentality, please. कृपा करके इस प्रकार की सोच को छोड़ दीजिए। Do not discriminate between friends and enemies. कृपा करके इस प्रकार का भेदभाव मत कीजिए कि कौन मेरा मित्र है, कौन दुश्मन है। Make your mind equipoised. Make your mind equipoised. और एक समता का भाव बनाए, समता का भाव। Except for the uncontrolled and misguided mind, there is no enemy within this world. हम इस पूरी दुनिया में हमारे खुद के मिसगाइडेड माइंड के अलावा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है। He's wanting to help his father. He wants to uplift his father to a higher consciousness. प्रहलाद महाराज अपने पिता की मदद करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो ऊंचे लोगों के अंदर उनकी योनि हो। He doesn't have to fight or resist his father. वो कभी भी अपने पिता के साथ किसी प्रकार का झगड़ा और उन्हें विरोध नहीं करना चाहते थे। Hiranyakashipu, where do you get your power to even resist me? और हिरण्यकशिपु उसके बदले में एकदम से गुस्से में बौखलाकर फिर बोलते थे कि तुम में मुझे विरोध करने की ये शक्ति कहां से आती है?
I get my power from the same place you do. तो प्रहलाद महाराज जवाब देते थे कि मेरी शक्ति मुझे उसी भगवान से आती है, जगत गुरु कृष्ण से आती है। The problem was that Hiranyakashipu didn't acknowledge that that's where he was getting his power. Did not acknowledge. यहाँ पे सिर्फ एक ही बात थी कि हिरण्यकशिपु ये एक्नॉलेज नहीं करते थे कि उनको कहाँ से शक्ति मिलती है। He thought his power was from his own austerities and his own egoistic, arrogant, false ego. और हिरण्यकशिपु को मेन ये लगता था कि उनको जो शक्तियां मिलती हैं वो उन्हीं की खुद की फॉल्स ईगो से जो भरी हुई उनकी तपस्या है, उस तपस्या के कारण उन्हें ये शक्तियां मिली हैं। And Prahlad, just not agreeing with him, felt like worse than death for Hiranyakashipu. It was so irritating and frustrating, and he couldn't stand it. और हिरण्यकशिपु बिल्कुल बहुत इरिटेट हो जाता था, वो बहुत फ्रस्ट्रेट फील करता था कि प्रहलाद महाराज इसके प्रति उत्तर में किसी प्रकार का कुछ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। वो इसी बात को देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट महसूस करता था और दोबारा बौखलाता था। Except for the uncontrolled and misguided mind, there is no enemy in the world. इस संसार में हमारे खुद का अनियंत्रित मन के अलावा इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। Now, we all have a mind. और सच बात तो ये भी है कि हम सबके पास मन है। There is a purpose to our mind. Krishna gave us a mind for a reason. और अगर भगवान ने हमारे को मन दिया है तो इसके पीछे एक पर्पस है, कोई कारण है। Krishna says in Bhagavad Gita, the mind is either your best friend or your worst enemy. कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि माइंड, ये जो मन है, यही आपका परम शत्रु भी हो सकता है और या परम मित्र भी हो सकता है। How many of you feel that your mind is your worst enemy? आप किन लोगों में से लगता है कि आपका मन परम शत्रु है? Let's see the hands. How many feel your mind is your worst enemy? Okay, now I want to ask you. I'm little confused sometimes, and Okay. pendulum. I feel like pendulum. Yes. So, what does it feel like to live with your worst enemy? 24/7. अगर आपको कैसा महसूस होगा अगर आप 24 घंटे अपने एक शत्रु के साथ रह रहे हैं तो? Horrible. How does it feel? Tell me. I want to hear it. How does it feel to live with your worst enemy 24/7? Come on. 24 घंटे सातों दिन अगर आप अपने सबसे वर्स्ट शत्रु के साथ रह रहे हैं तो कैसा महसूस होगा? माता जी सबसे प्रश्न पूछ रही हैं, बताइए। Frustrating. Insecurity. Uncomfortable. Insecure. I'm scared. Confusing. All of that. All of that. तो हमें फ्रस्ट्रेटेड, डरा हुआ महसूस होना, हर वक्त इनसिक्योर रहना, मतलब ये ऐसी भावनाएं रहेंगी 24 घंटे। That's because in and of itself, our mind is neutral. In and of itself, our mind is neutral. बट हमारे खुद के अंदर ये जो मन है, ये एक प्रकार का न्यूट्रल व्यक्ति है, ये न्यूट्रल है ये। The mind is like a computer monitor, the screen on a computer. आप ऐसा समझिए कि ये जो माइंड है, ये जो मन है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर जैसा है, जिसके ऊपर जो सब सॉफ्टवेयर में जो रिजल्ट आता है वो दिखता है। And it mostly flashes its memories of the past. और इस मॉनिटर के ऊपर केवल जो हमारी पास्ट की जो मेमोरीज हैं केवल वो दिखती हैं स्क्रीन के ऊपर, मन की स्क्रीन के ऊपर। Which are part of our past conditioning. It only reflects our conditioned thoughts, our conditioned beliefs. और जो हमारे पूर्व जन्मों के जो हमारे जो जिस प्रकार के बिलीफ्स हैं और जो हमारी कंडीशन है या हमारे जिस प्रकार के कर्म है, वो चीजें दिखती हैं स्क्रीन के ऊपर। But the mind is not our enemy. It
just wants to help us, and it thinks it's helping us by giving us information from our past experiences. बल्कि माइंड हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक हमारी एक प्रकार से मदद कर रहा है कि वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस की वजह से हमें क्या गलत है क्या सही है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है. So how do we make the mind our friend? अब हम अपने इस माइंड को, मन को मित्र कैसे बनाएं? My dear mind, हे मेरे मन, we can ask the mind questions हम अपने मन से कुछ प्रश्न पूछें and be curious. और ऐसा प्रश्न पूछने के दौरान हम बहुत एक्साइटेड महसूस करें, To be open, और ज्यादा कुछ नया जानने के लिए, non-judgmental. और नॉन जजमेंटल होने के लिए. Let's think about Haridas Thakur for 1 minute here. और Haridas Thakur. व्हाट यू सेड, Let's think about हाँ, अब हम कुछ मिनट के लिए हरिदास ठाकुर जी के बारे में सोचते हैं. when Maya Devi जब माया देवी approached him, उनके पास आई, what did he do? उन्होंने क्या किया? Okay, he was chanting. Did he ignore her? क्या उन्होंने माया देवी को इग्नोर किया? No, he acknowledged her. I see you. I hear you. Interesting proposal. उन्होंने माया देवी को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्हें कहा कि आप मेरा इंतजार कीजिए. Did he argue with her? क्या उन्होंने माया देवी के साथ आर्ग्यू किया? No, because that would have distracted him from what he was doing. क्योंकि आर्ग्यू करने से उनको डिस्ट्रैक्शन हो सकता था, क्योंकि जो भी वो उस समय कर रहे थे. And if he would have ignored her, she would have tried harder. और अगर वो माया देवी को इग्नोर करते तो हो सकता था कि वो उनको हार्म करे. This gives us a lot of information. This gives us information how to deal with our own mind. इसी प्रकार से उनको अपने मन द्वारा, अपने माइंड द्वारा ये इंफॉर्मेशन, इससे हमें ये पता लगता है कि मन से कैसे डील करना है. इससे हमें ये पता लगता है कि इससे हमें मन से कैसे डील करना चाहिए. So when our mind speaks to us, we can say, thank you for attempting to help me. Thank you for your proposal. जब हमें माइंड कोई नया प्रस्ताव देता है तो हमें उसको ऐसे बोल देना चाहिए कि ठीक है, तुमने मुझे कोई प्रपोजल दिया, थैंक यू. Let me think about this, and we'll discuss it later. I'm in the middle of doing something right now. और अभी हमें माइंड को ऐसे बोल देना चाहिए कि ठीक है, थैंक यू, मैं अभी सोचता हूँ, और हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर अपने दोबारा उसी कार्य में आप लग जाएं जो आपको करना चाहिए था. The mind is simply trying to help us from its remembrance of our past experiences. माइंड केवल हमारे को जो उसने पास्ट में देखा हुआ है, केवल वो याद करवाने में मदद करता है. Oh, don't trust anybody. Oh, people hurt you. वो इस प्रकार की चीजें फेंकता है हमारे अंदर कि आप किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है. These beliefs that, oh, people don't think you're worth anything, you're not worth anything. These beliefs that we have about ourselves, which are not the truth. वो हमारे अंदर कुछ इसकी पास्ट हमारी कंडीशनिंग की वजह से इसके अंदर ऐसा थॉट्स फेंकता है कि हमारे कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, तो इस प्रकार के थॉट्स फेंकता है वो हमारे अंदर. My dear mind, thank you, and I want to grow beyond those beliefs. तो हमारे को बस यही कह देना चाहिए, ओ माय डियर माइंड, थैंक यू, जो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और उससे थोड़ा साइड हट जाना चाहिए. So मेरे जो पुराने विश्वास है उससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. हाँ, और हमें ऐसे कह देना चाहिए कि जो मेरे पुराने विश्वास हैं, मैं उससे अब आगे बढ़ना चाहता हूँ. So we can ask the mind, my dear mind, if I wanted to practice the quality of being equipoised, what one thing might I do? और हमें अपने माइंड से ऐसा पूछना चाहिए कि हे मेरे मन, अगर मैं समभाव के लिए कोई एक प्रैक्टिस को अपनाना चाहूं तो वो प्रैक्टिस क्या होगी?
what would a person who is equipoised, what might they think or do? जो व्यक्ति संतुलित है, संभाव में संतुलित है, तो वो लोग आप क्या सोचते हैं वो क्या करते होंगे, वो क्या एक्टिविटी करते होंगे? Maybe they would take a deep breath. क्या वो गहरी गहरी सांसें लेते हैं? Maybe they would pause. क्या वो रुककर बात करते हैं, रुक रुक कर? Maybe they would move back and try to get a bigger picture. क्या वो एकदम से आराम से शांत बैठकर बहुत बड़ा कुछ सोचने का प्रयास करते हैं? The mind will actually tell you things and help you. असल में It has experiences of people who have been equipoised, so it can draw from those experiences too and help you. असल में माइंड में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं जो कि आपको हेल्प कर सकता है कि ऐसे जो संतुलित व्यक्तियों का जो वो लोग करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को आप गेन करें और उसके द्वारा सीखें। The trick is to be curious instead of judgmental. सच ये है कि हमें किसी व्यक्ति को जज करने की बजाय केवल क्यूरियस रहना चाहिए कि हम कुछ नया सीखें, जिज्ञासु रहना चाहिए। And to recognize the repetitive voices of our past conditioning, to recognize those are part of our programming, those are not who I am as a soul. To recognize the voices, the repetitive, voices of the of our conditioning. और बहुत प्रकार की हमारे पीछे जो पास्ट कंडीशनिंग्स की वजह से जो माइंड बहुत सारी जो वॉइसेस मतलब आवाजें करता रहता है, कभी ये बात है, कभी कुछ बात है, तो उन प्रकार की बातों से बचना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए ताकि हम बेटर उससे बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए। When we believe those voices, we reinforce the conditioning. अगर हम उन सभी आवाजों को एकदम से विश्वास कर लेंगे तो ऐसा होगा कि हम पुरानी कंडीशनिंग को, जो हमारे पर पुरानी चीजें चढ़ी हुई हैं, उनको दोबारा अपने ऊपर स्थापित कर लेंगे। When we're curious how to outgrow the conditioning, how to practice some new habit, the mind can help us. पर अगर हम जिज्ञासु रहेंगे कि भी हमें इन सब बातों से ऊपर उठना है कि जो माइंड बोल रहा है सब कुछ, तो हम कुछ नया सीखेंगे और ग्रो करेंगे। So now let's go back to Prabhupada for a minute. अब चलिए दोबारा प्रभुपाद जी की तरफ चलते हैं कुछ देर के लिए। Prabhupada didn't see Maya as his enemy. प्रभुपाद जी ने कभी भी माया को अपने शत्रु की तरह नहीं देखा। He recognized that she was very powerful and subtle. प्रभुपाद जी ने हमेशा ऐसा माना है कि माया एक बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही सूक्ष्म है। Maya doesn't get us with some grand idea to get us off course. माया हमारे पास कोई बहुत बड़े तरीके का कोई विचार नहीं लेकर आती। Maya just comes in with just little tiny, just like a little bit off. Well, what's the big deal? Oh, what's the big deal? और माया बहुत ही सूक्ष्म प्रकार से बहुत छोटे छोटे प्रलोभन लेकर आती है कि क्या इसमें इतनी बड़ी बात हो जाएगी, कर लीजिए, क्या इसमें ऐसा हो जाएगा। Not a big deal when you break your integrity. You were late. Oh, not a big deal. और आपको ऐसा महसूस कराएगी कि इसमें क्या बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपनी ईमानदारी को छोड़ भी देंगे तो इससे क्या बड़ा आपको बहुत कुछ हो जाएगा। If a plane is off course 1%, not a big deal, right? 1%. 1%. If an airplane is off course 1%. Okay. अब इससे क्या हो जाएगा कि अगर 1% आप ऐसा कर भी लोगे तो Airplane. अगर 1% ऑफ कोर्स चलता है, जो जहाज है तो अपने पद से अगर 1% भी अगर चूक हो जाए तो क्या हो जाए। हाँ, और जैसे माता जी बोल रही हैं कि अगर जहाज है वो अपने 1% अपने पद से जो उसका फ्लाइंग रूट था उससे डेविएट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार की मन में ख्याल डालती है माया। And I'm trying to go from New York
to India. और मेन बात है कि मैं न्यूयॉर्क से इंडिया आना चाहता हूँ. Okay, 1%, not a big deal, not a big deal, not a big deal, not a big deal, and I end up in Dubai. और इसी 1% को अगर मैं अमेरिका से इंडिया के लिए चली थी, तो अगर मैं ऐसी 1% रूट लेती रहूंगी तो मैं पता लगेगा कि मैं दुबई पहुंच गई इंडिया की बजाय. This is how Maya gets us. और ऐसा ही यही है कि माया हमारे साथ यही करती है. So we want to really honor that Prabhupada had a respect that Maya is very powerful, very powerful. हमें इस विचार को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में मानना चाहिए कि माया बहुत एक पावरफुल है. Who is the only person more powerful than Maya? कौन है माया से ज्यादा, कौन एक ऐसा एक व्यक्ति है जो कि माया से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली है? Yeah, not this little jiva. This little jiva is not more powerful than Maya. ये एक छोटा सा जीव माया से नहीं शक्तिशाली है. My dear Lord Krishna, please protect me in the early stages from Maya. Help me to detect, when I'm off course early on. हे मेरे परम ईश्वर कृष्ण, आप मुझे माया से हमेशा बचाइए. Help to continue. Go ahead. आप मुझे मदद कीजिए कि मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं. मुझे बताइए कि मैं कब पथभ्रष्ट हुआ. और आप मुझे बताइए कि कब मैं पथभ्रष्ट भी हो गया. Help to keep bringing me back on course, because as a jivatava, I become illusioned, I make mistakes, my senses are imperfect, I have a tendency to cheat. Please help keep bringing me back on course. I need you. और जब मैं पथभ्रष्ट हो जाऊं तो कृपा करके मुझे आप वापस ले आइए, और ऐसे ही करते रहिए कि जब भी मैं गिर जाऊं तो मुझे हमेशा वापस ले आइए. So there are two favorite sayings that I have of Srila Prabhupada. और मैं प्रभुपाद जी द्वारा मेरे फेवरेट कोट्स हैं जो मैं आपको, प्रभुपाद जी जो कहते थे वो मैं आपको बताना चाहूंगी. The first one relates to even Hiranyakashipu. और पहला तो हिरण्यकशिपु से रिलेटेड ही था वाक्य. He was either Jai or Vijay in the spiritual sky originally, right? जैसे कि जय और विजय हैं जैसे स्पिरिचुअल स्काई में. And he made a mistake. He offended the four Kumars. और उन्होंने एक मिस्टेक कर दी कि 4 कुमार को उनके प्रति अपराध कर दिया, 4 कुमारों के प्रति. And he had to learn a lesson in a very hard way. He had to be separated from his service. और इसकी अवज में उन्हें बहुत ही बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ी कि जो उनको सर्विस मिली हुई थी उस सर्विस से हटना पड़ा. For 3.5 lifetimes. और 3.5 लाइफटाइम्स तक, 3.5 जन्मों तक. So Prabhupada said, this is one of my favorite sayings. Prabhupada said, what we learn easily is easy to forget. जो, और माता जी बता रही हैं कि ये मेरा बहुत ही प्रिय वाक्य है जो प्रभुपाद जी कहते थे कि जो हम बहुत इजीली सीख सकते हैं वो बहुत इजी भी है, उसको हम भूल भी सकते हैं. What we learn with difficulty is difficult to forget. और जो हम बहुत मुश्किल से सीखते हैं वो बहुत मुश्किल भी होता है भूलना. And that's why we often learn from experience. और यही रीजन है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुछ सीखते हैं. It hits us hard and we can't forget. Oh my जितना gosh. हमारे को तेज लगेगी उतना हम कभी नहीं भूलेंगे. And then my other favorite saying of Prabhupada is, one time he was on a morning walk with some temple presidents and maybe GBCs. और मैं एक आपको मेरा प्रभुपाद जी जो कहते थे प्रिय वाक्य वो भी सुनाने जा रही हूँ. और एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे. मे बी वो लोग जिनके साथ जा रहे थे वो टेम्पल प्रेसिडेंट्स या जीबीसीज थी. And they were criticizing one another, saying, oh, he's doing this and he's in my zone, and criticizing. और वो प्रभुपाद जी के समक्ष एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे वो जो जीबीसीज थे. And Prabhupada turned around and with his cane, he said,
I have only come to encourage, and you are simply discouraging. और प्रभुपाद जी एकदम से मुड़े और उन्होंने अपनी छड़ी उठाकर यूं किया सबकी तरफ और कहा कि मैं तुम लोगों को सबको उत्साहित करने आया हूं और तुम लोग हतोत्साहित होने की बातें कर रहे हो. And he repeated, you are simply discouraging one another. I have only come to encourage. और प्रभुपाद जी ने फिर इसको बहुत स्ट्रांगली इसको रिपीट किया अपनी इस बात को कि मैं आप लोगों को केवल उत्साहित करने आया हूं. It's really difficult for a jiva tattva to extricate itself from conditioning. It's a big deal. It's not an easy thing. और ये एक जीव तत्व के लिए ये बहुत ही मुश्किल चीज है कि अपने आप को अपने पूर्व कंडीशनिंग से बाहर निकालना. We need to help one another and encourage one another. और हम सबको भी जरूरत है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को उत्साहित करें. We need to be compassionate like Prahlad was for his father. हम एक दूसरे के प्रति दया का और दयालुता का भाव रखें. My dear father, this is not helping you. This demoniac mentality is not helping you, my dear father. माता जी बोल रहे हैं भगवान को कि इस प्रकार की है मेरे पिता, इस प्रकार की जो मेंटालिटी है हम सब में, ये हमें नहीं बढ़ेगी. तो एक तरीके से माता जी प्रार्थना करती हैं. फिर प्रहलाद महाराज जी जैसे अपने पिता को कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो मेंटालिटी है वो आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगी. So what we can learn from this story is, where is my mentality insecure and compensating by trying to control? Where is my mentality in that frame of mind? इस पूरी स्टोरी के अंदर अब हमारे लिए सीखने को ये है कि हम सबसे पहले सोचें कि हमारी सोच हमें हमारी ऐसी जो ये पूरी सोच है हमें कहाँ ये मजबूर कर रही है कि हम इसको हिरण्यकशिपु जैसे अपने आप को इनसिक्योर फील करता था, तो गुस्सा करता था, तो हम ऐसी चीजें हम कहाँ अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, ताकि हम इसका अवलोकन करें, एनालाइज करें. And where is my mind really holding on to Krishna's lotus feet? Please, Krishna, I am so prone. Please protect me from the subtleties of Maya, please. और हम ऐसा सोचें कि हम अपने मन से भी पूछें कि कहाँ हमारा मन हमारे को मदद कर रहा है भगवान के श्री चरण कमलों में बने रहने के लिए. And I apologize, I went 6 minutes over class time, so. मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, मैंने 6 मिनट से अधिक क्लास का टाइम. And I didn't really leave time for questions. और मैं सच में सबके लिए सवाल पूछने का टाइम भी छोड़ना चाहती हूँ. So what, you usually end at 9, right? People have jobs and things they have to go to. What we could do is, I guess after class, maybe there can be a little bit. मैं समझती हूँ कि सबको प्रश्न पूछने की भी इच्छा होगी और कुछ लोग जॉब पे भी जाना चाहते होंगे, तो मैं क्लास के बाद रुक जाऊंगी अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है. Okay, a few more minutes. तो भक्तों ने कहा कि 5 मिनट तक और अधिक क्लास को लिया जा सकता है, तो माता जी कह रही हैं ठीक है. Okay. आप सवाल कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. So maybe we have time for 1 or 2 questions. 1 या 2 प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं. 1. You say it in Hindi. जैसे कि बता रहे थे कि प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि हमारा मन कभी मित्र होता है, कभी शत्रु होता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि शत्रु होता है. तो ऐसी स्थिति में जब हम इतने सक्षम हैं या साउंड हैं, तो हम अपने मन के साथ जैसे माता जी बता रही थी वैसे व्यवहार करने का प्रयास करते हैं या कर पाते हैं. लेकिन जब हमारा माइंड साउंड नहीं रहता परिस्थितियों से या जैसे भी स्थिति से, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम मन के प्रभाव से बच सकें? Can you say that in English? Yeah. So like Prabhuji was saying that sometimes our mind is friend and sometimes enemy. So when we are strong enough in our relationship with Krishna, so then we are easy to deal with the mind, like you were saying, that tackling with the mind. But when due to the situations, circumstances, I'm not very strong, then how to deal with the mind in that situation?
Okay. How do you learn how to lift 50 pounds of weight? कभी आपने 50 पाउंड्स वेट को उठाकर कभी एक्सपीरियंस किया है? How do you do that? By practice. Well, you don't start with 50 pounds. माता जी पूछ रही हैं कि अगर सीधा आपको बोल दिया जाए 50 किलो उठाना है तो कैसे उठाएंगे? तो प्रभु जी जवाब दे रहे हैं कि प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा मैं। So you practice. माता जी ने बोला कि सीधा 50 किलो नहीं उठा पाओगे। हाँ, यस, माता जी ने बोला कि आप सीधा नहीं उठा पाओगे, तभी आप प्रैक्टिस शुरू करोगे। So you start by lifting weights where it's fairly simple. तो आप छोटे-छोटे वेट्स को उठाना शुरू करोगे। Your mind tells you something and you're a little irritated and you're like, all right, do I really want to believe that? Is that really the truth, my dear mind? I didn't get. Then you can ask yourself, and when you're just a little irritated, Okay. you can ask your mind, is that really the truth? Do I really want to believe that? Is there another perception I could have? तो आपको ऐसी अपने माइंड को ऐसी स्पेस देनी पड़ेगी कि एक बार उस टाइम पे रुककर कि आप अपने आप को मौका दें अपने माइंड को कि इसका कोई अदर परसेप्शन या कोई वो भी हो सकता है सोचने का तरीका। That's when you want to acknowledge that you're irritated and start practicing something, because if you just push down the irritation, जब आप अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं कि आप इरिटेट हो चुके हैं, आपके माइंड को आप एक्नॉलेज कीजिए कि आप इरिटेट हो चुके हैं, तो आपको इससे मदद मिलेगी कि आप उसी इरिटेशन को थोड़ा नीचे की तरफ दबा पाएं। then you might wait until it comes out the top of your head, and then that is going to be very difficult to control. तो जब आप इरिटेशन को नीचे दबाते हैं तो एकदम से मन फिर उजागर होता है, एकदम से आपको कन्फ्रंट करता है, तो वो ऐसी स्टेज बहुत मुश्किल होती है कि कैसे हम कंट्रोल करें। We want to learn, I like the word manage. We need to learn how to manage our mind on a regular basis, not just when we're furious, but like every single day. We have plenty of opportunities to practice managing our mind and being curious. My dear mind, why are you so irritated? What's going on? माता जी कह रही हैं कि मेरा एक बहुत प्रिय शब्द है, वो है मैनेज करना। माइंड का दमन नहीं किया जा सकता, इसको मैनेज किया जा सकता है, और ऐसा ही हम प्रयास करते रहेंगे छोटे छोटे मैनेज करके कि हमें अपने बारे में, अपने मन के बारे में समझना पड़ेगा कि हम उसको कब कब कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसी द्वारा हम धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं। Does that answer your question? You start practicing with little things. You start practicing in little things, but practice regularly. And then, you'll have more strength when the bigger things come. Okay, I'm really angry here. What is this? You can practice then, but you don't try to lift 50 pounds. You'll hurt yourself. माता जी बोल रहे हैं कि क्या आपको मेरे उत्तर से कुछ मदद मिली? आप इसी प्रकार से धीरे धीरे एकदम से 50 किलो उठाने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे आप मैनेज कीजिए, तो आप इससे आपका धीरे धीरे उद्धार हो जाएगा। Maya gets us with the little things, and the practice is with the little things. As we practice with the little things, then we get more strength with the big things. अगर आप छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करने का प्रयास स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे बड़ी चीजों का भी ऊपर भी प्रैक्टिस करने की आदत बन जाएगी। I think that was 5 minutes. I'm sorry. We'll have more questions afterwards. I did want to say thank you so much for your time and your attention and your questions and your माता जी कह रही हैं कि जैसे कि 5 मिनट खत्म हो गए हैं और मैं प्रश्न अगर किसी के हो तो वो बाद में पूछ सकते हैं, और मैं आपका अत्यंत धन्यवाद करती हूँ आप मेरे को पेशेंसली सुनने के लिए। I wanted to say all glories to Srimad Bhagwatam and all glories to Srila Prabhupada, our example to follow. मैं धन्यवाद करती हूँ श्रीला प्रभुपाद को और भागवतम को, और भागवतम में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करने के लिए। And I have 4 books that I've written, which I have here. I think last year, some of you may have gotten the Finding the Gap and मैंने टोटल अब तक 4 किताबें लिखी हैं। लास्ट ईयर कुछ लोगों को नहीं मिल पाई थी, तो मेरी किताबों का नाम है फाइंडिंग द गैप, एंटरिंग द गैप,
तो मैं यहाँ पर वो इस बार वो किताबें लेकर आई हूँ। These are kind of intensive study books on the mind and the ego and the anartas. और जो व्यक्ति माइंड और ईगो के ऊपर बहुत अच्छे से उसे समझना चाहते हैं तो मेरी किताबें उनको मददगार हो सकती हैं। And this book is a partial life story of how I became a devotee and a fanatic and how that affected my relationships. What to do about सू एक किताब लिखी है, तो माता जी ने ये तो इस किताब में माता जी ने स्टोरी टेलिंग की है कि माता जी पहले एक फेनेटिक भक्त से कैसे एक जर्नी को कवर करा उन्होंने, और बहुत लाइट हार्टेड इंस्टेंसेस हैं कि वो कैसे डिवोटी बनी। It has a lot of my mistakes in here and how I learned how to reconcile with my parents who I thought were my enemy. और इस पूरी किताब में माता जी ने जो जो अपने पेरेंट्स को अपनी मिस्टेक गलतियों की वजह से दुख पहुंचाया तो उसको कैसे ठीक किया, और माता जी इस बुक के थ्रू प्रयास कर रही है कि जो गलतियां उन्होंने अपने भक्ति के जीवन में की वो लोग भक्त लोग ना दोहराएं, तो इसीलिए माता जी ने वो स्टोरीज उसमें। And this book is about compassion. This is a small book that I wrote about compassion. Yeah, go ahead. ये जो छोटी किताब है ये माता जी ने दया और दयालुता के भावों को कैसे डेवलप करें उसके ऊपर लिखी है। All these books have all my mistakes in, so you don't have to make the same ones. I made many mistakes. तो माता जी ने बहुत सारी गलतियां की अपने जीवन में और सारी गलतियों को इसमें परोया है इसके एक्सपीरियंसेस को। So I only have 4 sets of the 4 books, which is a discounted rate. Instead of 1,900, it's 1,200. ये पूरी चारों किताबों का जो सेट है ये माता जी के पास केवल 4 सेट हैं इसके किताबों के, और माता जी ये 1,900 इनका प्राइस है, बट माता जी इसको डिस्काउंट में भक्तों के लिए 1,200 रुपए में दे सकती हैं। And I have a lot of copies of this set, which is instead of 900, it's 600 today. और इन दो किताबों की माता जी पास 4 से ज्यादा कॉपीज हैं, तो ये दोनों किताबें अगर किसी को कंबाइंड चाहिए तो ये वैसे 900 की हैं दोनों, 900 रुपए की, बट ये 500 रुपए में माता जी दे सकती हैं। And I have GPay and I'm willing to sign the books too. और माता जी द्वारा आप इन किताबों को एक साइन भी करवा सकते हैं और एक अपने लिए आध्यात्मिक संदेश भी दे सकते हैं उन किताबों को। So thank you from the bottom of my heart. Jai Srila Prabhupada.